خیر ہو آپ کی. جی السلام علیکم، میں ہوں سمرین حسین اور میرے ساتھ ہیں بہت ہی مشہور لیجنڈری عابد کشمیری صاحب. تو ابھی حالیہ وزٹ انہوں نے کیا ہے امریکہ سے، وہ پاکستان گئے تھے. تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کا جو حالیہ دورہ ہے پاکستان ہے وہ کیسا رہا، اور انہیں کوئی شکایت تو نہیں ہوئی. پاکستان جب لیجنڈ جاتے ہیں موسٹلی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پاتے. تو آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا رہا آپ کا تجربہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے والوں کو السلام علیکم. بات یہ ہے کہ جو آپ کا اخلاق ہوتا ہے، جو آپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کے حساب سے آپ کی عزت ہوتی ہے، اس کے حساب سے آپ سے نفرت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے میں نے جو زندگی وہاں گزاری ہے، 48 ایئر میں نے شو بز میں کام کیا ہے، فلم، ٹی وی، اسٹیج. تو وہ حسن سلوک ایسا رہا کہ میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں آفٹر 6 منتھ تو وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. ہر چینل والا مجھے بلاتا ہے کہ یار ساڑھے نہ بہ کے 2 بول ہی بول دے، اینا کام کرتے رہے. تو پھر وہ بولنے پڑتے ہیں. تو عزت دیتے ہیں تو کام ہوتا ہے. دنیا میں ہر چینل، ہر ادارہ مجھے عزت دیتا ہے، ہر بندہ مجھے عزت دیتا ہے. جیسے پرویز صدیقی صاحب مجھے عزت دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کام ایسا اچھا کیا ہوا ہے. لوگوں کی خدمت کرنا. آپ کی جو اتنی لائف میں آپ نے کامیڈی کی ہے، اتنے بڑی بڑی فلمیں اور ڈرامے اور تھیٹر، ہر جو بھی فنون لطیفہ ہے اس کے اوپر آپ کا کافی ماشاءاللہ تجربہ رہا ہے، اس پہ کافی عبور رکھتے ہیں. سب سے بیسٹ کامیڈی کون سی کی ہے آپ نے اب تک، جس میں آپ کو بڑا مزہ آیا، آپ نے خود انجوائے کیا؟ بات یہ ہے کہ تھیٹر پہ کامیڈی کا بہت مزہ آتا ہے، لیکن میرے حصے میں جو ٹیلی ویژن آیا ہے نا، ٹیلی ویژن کے جو سیریلز ہیں اس میں کامیڈی جو ہے وہ بہت زبردست ہوئی ہے. اتنے سیریل ہیں کہ میں گن نہیں سکتا. یہ جو چینل والے ہیں کاوش والے، یہ گن سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے. ان میں میرا ایک ڈرامہ جو مجھے پسند ہے خاص طور پہ، جس ڈرامے کے بعد میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ہوں تنو کام آ گیا ہے، وہ ڈرامہ تھا رات، جس میں میرا مکالمہ ہٹ ہوا تھا. خیر ہو آپ کی. اس میں افضال احمد صاحب اور میں دوست ہوتے ہیں. تو وہ اتنا ہٹ ہوا اس میں میرا، تو ان کا نام ہوتا ہے منور، تو میں ان کو منوری کہتا ہوں کہ منوری خیر ہو آپ کی. تو اس کے جو مزیدار بات یہ ہے کہ دلیپ صاحب جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے وہاں گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے جفی ڈال کے کہا تھا خیر ہو آپ کی. یہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہے کہ یار ایک بندہ جس کو دیکھنے کو ترستے ہیں لوگ اور دیوتا کہتے ہیں انہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خیر ہو آپ کی. وہ میرا مکالمہ بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ واہ واہ، یہ میرا یہ حاصل ہے. اس کے علاوہ جو لوگ قدر کرتے ہیں وہ تو پھر کرتے ہیں. اچھا عابد صاحب، ایک اور سوال مجھے ابھی ذہن میں آیا ہے، وہ یہ کہ عام لائف میں بھی کبھی کامیڈی کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ ماشاءاللہ اتنے بڑے کامیڈین ہیں آپ، اور ہر جگہ تو آپ آن اسکرین تو بہت کچھ آپ کا ہم نے دیکھا ہے. تو کبھی ہوتا ہے کبھی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو آپ سے عام روٹین کی لائف میں جو سے بڑا آپ نے بعد میں انجوائے کیا ہو؟ دیکھیں سمرین صاحب، بات یہ ہے کہ میری لائف کے 2 رخ ہیں. میں عام زندگی میں سنجیدہ آدمی ہوں، کیونکہ میری والدہ کہا کرتی تھی وہ تو کتنے کہا کہ ماحول کرنا. میں عوام سے مخاطب ہوں، تو کہا آ کے تو بالکل سیریس ہو جانا. یہ تھا. اور جب میں کہیں کسی پروگرام میں جاتا ہوں، اسٹیج پہ بلاتے ہیں کہ آپ عابد صاحب آپ سے 2 باتیں کریں گے، تو وہاں پہ میں جب باتیں کرتا ہوں تو وہ جو میرا انداز ہے، وہ یہ کاوش والوں نے میرا انٹرویو بھی کیا ہوا، تو میرا انداز ایسا ہے کہ جس میں
बातें करता हूँ तो लोग हंसते हैं। मतलब एक कॉमेडी जो है वो आपके मिजाज का एक हिस्सा बन गई है। बन गई है। अब कल एक जगह पे यहाँ अमेरिका में बड़े ज़बरदस्त होटल में मैं गया हूँ खाना खाने में एक दोस्त के साथ। सैफ मेरा एक दोस्त था, वो ले गया मुझे। तो वहाँ पे वो एक फैमिली थी पाकिस्तानी, जिनका कोई फंक्शन हो रहा था। तो वो उठ के खड़े हो गए हैं सारे। तो मैं कह रहे हैं सैफ ये तो जहाँ थे उन्होंने मेरे को पैसे ले लेने, तो यहाँ कोई और वाक़या है ना, मैंने मारना है। सारे खलो गए ने। उन्हें कहा नहीं पाया ना, वो देख के खलो गए ने कि ये कितने आ गया है पाकिस्तान का एक्टर। तो वही हुआ, उन्होंने आगे कहा कि जी असीं तुहाडे नाल तस्वीरां लवानियां ने, प्लीज़ एक एक तस्वीर साडी ला, ए मेरी बहू है तेन तस्वीर लवा दे, ए मेरी बेटी है, ए दमाद है फलाना। यकीन करो तब से अब तक मैं खुश फिर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत अब तक दी हुई है। ये क्यों दी हुई है? ये मेरी माँ की दुआ है कि अगर तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी तो तू मरते दम तक हिट रहेगा। तो वही हुआ, मेरी कभी कोई शिकायत नहीं आई। ये अरशद भाईजान जो हैं, इनको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि शिकायत क्या होती है कि जो फलानी जगह से नशा कर रहे सी, या उस लड़की ना फिर रहे सी, या जुआ खेड रहे सी। नेवर काम पे काम तो घर ते बच्चों के नाल। हुण इत्थे बच्चे जड़े ने उन्हां जो मेरी जान है। मेरी जी छोटी पोती है शिफा, वो पूछती रह गई कि अब्बू किधर हैं, अब्बू आ नहीं रहे, अब्बू लेट हो गए हैं। और मैं जानना थे बच्चे, उन्होंने मैं खेलना, उन्होंने मैं आमना को पता है कि मैं उन्होंने नाल डांस कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो मेरी बना ली है, या पलम चपलम अब्बू दरा करें दरा, वो पूरे गाना ना कर रहे हैं। और उन्होंने वीडियो बना ली है, चला चला के उन्होंने भेजी, पाकिस्तान भेजी। हर बंदा कह रहा अब्बू नूं की होया, बड़े हैप्पी ने। मैं क्या बस जो दीवा पूजन लगता तो फिर उसकी लौ तेज होंगी है। एक ही गल हुई, मैं क्या बड़िया ने क्या है कि उम्र के साथ साथ, लेकिन मेरी उम्र तुहाडे सामने हुई, लेकिन फिर भी मैं जिंदा दिल आदमी हाँ। और मेरे चेहरे तो लगता है, मेरी हर चीज़ तो लगता है। तो मैं माजरत चाहना कि मैं अगर कोई किसी शान कोई गल गुस्ताखी हो गई हो तो मैनू माफ़ कर देवे। तो बाकी मैं हर वेले हाज़र हाँ। होर कोई समरीन साहब सवाल कोई तुहाडे दिल चाहता है पूछो। अच्छा, अब मेरे जहन में एक और सवाल आया। आप माशाल्लाह हमेशा इतना अच्छा ड्रेस अप होते हैं और बड़े मज़े के कपड़े पहने होते हैं आपने, तो कौन आपके लिए कपड़े बाय करता है, कहाँ से आप शॉपिंग करते हैं? देखिए जी, कपड़े तो मेरी बेगम करती है शॉपिंग सारी। तो एक टेलर है, उसको समझाया हुआ है, तो वो फिर सी देता है। वो भी बेगम ही बता क्या कहते हैं पसंद करती है। नहीं ये डिज़ाइन ना पाइया में फिर बुरा बनाने की, ए डिज़ाइन अच्छा है। तो यानी कि आपकी जो बेगम साहबा हैं वही आपकी डिज़ाइनर हैं। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में बेगम अच्छी मिल जाए तो बंदे की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाती है। ये बड़ी पक्की बात है। कहने वाले कहें कि नहीं ये है कि गल ही है वे कि मैं 48 साल ये शादी नहीं हुए तो 48 साल ही मैं शादी से बाद मैंने काम शुरू किया। तो मैं काम किया है, सवेरे गया तो रात 2 बजे आए। कितने साल? 48 साल। कभी नहीं पूछा उसने कि तुसी किथे सा एनी लेट। उन पता कि शूटिंग कर रहा होगा, वो काम करके आया है, सोना घर आ गई। और कभी कोई शिकायत ऐसी उसको मौसूल नहीं हुई। और अगर हुई भी है तो उसने दरगुजर किया है, कभी बुरा नहीं मनाया। उस वजह से ही आबद कश्मीरी, पहले मेरी माँ थी ऐसी, अब मेरी बीवी ऐसी है। आप कहेंगे कि ये माँ और बीवी की मिसाल दे रहा है। ये इस उम्र च बीवियां जिहड़ियां मावां ही हो जांदियां ने, ये तुहानूं नहीं पता। नहीं, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने हमेशा सुना है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये जो कॉल है वो आप पे बिल्कुल सादिक आता है।
बिल्कुल सही आपने कहा, औरत का हाथ होता है, लेकिन किसी वक्त किसी औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है कामयाब। नहीं, वो तो ऑफ कोर्स होता ही है ना, औरतों को कामयाब बनाने वाले मर्द हजरात होते हैं। आप जॉब करती हैं तो मैं आपको इजाज़त ना दूं, या आपका मियाँ आपको इजाज़त दे और नहीं घर बैठो, कोई ऐसी नौकरी के तो आप तो तरक्की ना कर सकी। जैसे फिर शादिया का जिक्र करूँगा, शादिया ने काम किया, बाहर निकली तो अल्लाह का करम ये हुआ, मैं दूसरों को उसकी मिसाल देता हूँ शादिया की, उसने इतनी मेहनत करके ये सारा कुछ बनाया है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये सब नसीब के किस्से हैं, नसीब की बातें हैं, जिसको नवाज देता है वो अल्लाह, जिस पे माँ का करम हो जाता है। मेरी माँ ने कहा कि अल्लाह से उतना मांगा करो जितना चाहिए, तो मैं नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जितना चाहिए उन्ना ही दे दे, तो उन्ना ही देता है, अजे तक दे रहा है। कितनी उम्र रिटायर लाइफ है, लेकिन कि रिटायर लाइफ मेरे तो छोटियां उम्र वाले लगेगा कि बाबे फिरने मैं उनकी फिरने हैं, अल्लाह माला के जो फिर जो भी है। अच्छा आबिद साहब, एक और सवाल मेरी तरफ से आ रहा है। कितने सवाल हैं, एक ही दफा बता दो, लिख के दे दो बल्कि। अब मैं क्या करूं, इतनी बड़ी लेजेंडरी मेरे सामने है तो मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं आपसे पूछेंगे। एक ही सवाल अब मैं आपसे पूछने लगी हूँ, वो ये कि जब आपने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा तो कौन वो शख्स था जिसने कि ये गौहर आप में दरियाफ्त किया, ये जो हिस्से मिज़ा माशाल्लाह आपने अल्लाह ताला ने आपको दी है, ये कौन था इसको दरियाफ्त करने वाला? दरअसल बात ये है कि मैं भी पहले हीरो का पार्ट करता था, पेंट कोट टाई ये वो, तो मैं देखता था जब ड्रामे में हम ख़त्म करते हैं तो बाहर जाते हैं तो लोग जो हैं वो नन्ना अली जहाज इनके पीछे पीछे ज़्यादा, क्योंकि वो कॉमेडियन थे, तो हमें कोई ताड़ा भी अच्छा सी इतना सा, तो मैंने फिर पूछना तो यावर हयात साहब टेलीविज़न के बहुत बड़ा नाम है, प्रोड्यूसर हुए, तो उन्होंने कहा कि डेबी जितनी कॉमेडी करनी आ जाए ना, मैं करनी तेन मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं करैक्टर कर सकना, उहदे चो कॉमेडी निकल आवे तो फिर चलो फिर, तो वो फिर कॉमेडी के छोटे छोटे करैक्टर करने शुरू किए। मतलब पहले से तय नहीं था कि आप कॉमेडी करेंगे? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो भी आप पूछेंगे कि किसको देख के अपनी आपको लगा कि ऐसी कॉमेडी करूं, तो वो मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, जिनको देखा कि यार ये भी हैंडसम आदमी है, असी भी हैंडसम, तो फिर असी मैं कहा भी ये भी हैंडसम आदमी है, तो मैंने भी लोग कहते हैं बड़ा हैंडसम, तो असी क्यों नहीं कॉमेडी कर सकते। तो तब मैंने कॉमेडी शुरू की, और उसके बाद फिर सारा करते 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 एक रोल समंदर ड्रामा था, अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ, यावर आसद प्रोड्यूसर थे, उसमें एक किरदार था रिक्शे ड्राइवर का, उसका नाम है गुल्लू बादशाह। गुल्लू बादशाह, वाह, ये तो बहुत ही बड़ा हम लोगों को याद रह गया एक करैक्टर। उसके बाद तो गुल्लू बादशाह ने तो और कितना काम, तो वो नहीं, वो कहने लगे कि ले भी जे तू ये हिट हो गया ना, ये अल्लाह करने वाला होंदा ही, तो तुम सारी जिंदगी का कॉमेडियन हो जाएगा। फिर मैंने कहा जी ठीक है, तो वो मैंने किया, और यकीन करें कि वो तीसरी किस्त के बाद मैं अपने घर से नहीं निकल सकता था। जब तीसरी किस्त उस ड्रामे की चली तो लोग खड़े होते थे मिलने के, या गुल्लू बादशाह ने मिलना है। उसका वाक़या मैं अगर एक वो इजाज़त है तो सुना दूं कि वो ड्रामा जब बनता है तो उसकी पहली किस्त इस्लामाबाद जाती है, वहाँ बैठ के डायरेक्टर प्रोग्राम चेक करता है और वो कहता है कि ये वो, अब जितने आए हुए थे ना वो स्पॉन्सर करने वाले, उस सारे ने कहा कि यह ड्रामा असी स्पॉन्सर करांगे। उन्होंने कहा अच्छा जी, तो किस वजह नाल की अच्छा लगा है, तो टॉप की कास्ट से जितने पाकिस्तान के टॉप के एक्टर थे, अल्लाह बख्शे, आबिद अली, फिरदौस जमाल, औरंगजेब लगारी, महबूब, जितने हुए, और औरतें भी उसमें थी। तो उन्होंने कहा यार वो रक्षा वाला जड़ा, क्या बात है, वो
तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आगा नासिर साहब मुझे अभी तक याद है, थे डायरेक्टर प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि अमजद ये जो करैक्टर है रिक्शे वाला, तुम्हारा सीरियल तो बड़ा करख्त है, इसको एंड तक ले जाओ और मेन कहानी में इसको डाल दो। जी ठीक है। ये मुझे अमजद साहब ने ही सुनाई बात, तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो शकीला कुरैशी मेरी हीरोइन बनी फिर उसमें। तो इतना हिट हुआ, मैं नहीं बता सकता। मैं जाना था सऊदी अरब, मेरा बड़ा भाई होता था वहाँ, मेरी नौकरी के लिए किया हुआ था कि बस भी हूँ छड़ दो चलो। मैं कहा नहीं जी हूँ तुसी चलो, मैं नहीं जाना हूँ बाहर, मैनू मिल गई मंजिल। बेहतरीन ड्रामा राइटर जिसने ड्रामा निकाला। हाँ, उनका ही नाम आएगा। अच्छा आबिद साहब, जो पाकिस्तान के इतने ड्रामों में आपने काम किया है, तो पाकिस्तानी ड्रामा निगारों में आपको सबसे बेहतर कौन लगे, सबसे अच्छा काम आपका किसके साथ है? राइटर। हाँ जी, राइटर, ड्रामा निगार राइटर जी। वो कहेंगे लोग कि उनका नाम ले लिया, उन्हीं का लूँगा कि उन्होंने मुझे पहचाना। अमजद इस्लाम, अमजद साहब मैंने एक शर्ट बनवाई थी, उसके ऊपर मैंने लिखवाया हुआ था मेड इन अमजद इस्लाम अमजद। तो वो इतना खुश होते थे कि यार कि तू लिखाया है। मैं कहा जी तुसी बनाया है। उन्होंने इतने सीरियल लिखे। एक पुराने सहाफ़ी होते थे फिदा अहमद कारदार, तो उन्होंने कहा कि यार इसके अलावा तेन कोई कॉमेडी नज़र नहीं आता, हर कॉमेडी रोल यही करता है। उन्हें कहा यार जो मैं लिखन नहीं बहना तो मेरे सामने आ खलोता है कि मैं की करना जी हूँ, तो फिर मैं लिखना देते। और ये ऐसा कर दिया कि आज तक ये भी इंटरव्यू अमजद साहब का कहीं जगह होगा, आप टोटा लगा सकते हैं कि जो मैंने लिख के दिया इसने यही बोला और उसी में अपना नाम पैदा किया, और ऐसा ही हुआ। तो मेरा ख्याल है उनके कोई 22-23 सीरियल हैं, बड़े नाम हैं वो मैं बाद में आपको बता दूंगा, इतने ये याद नहीं आ रहे, इतने नाम हैं वो किए हैं। उसके अलावा और बेपना टीवी सीरियल ड्रामे ये वो। फिर फिल्मों की तरफ अगर चले जाएं तो फिल्मों में बेस्ट कॉमेडियन के अवार्ड मैंने इतने बेपना लिए हैं। एक फिल्म मैंने की थी बाज़ार हुस्न। अच्छा, बाज़ार हुस्न का आपने नाम लिया तो मुझे याद आया, उसमें एक डायलॉग बड़ा अच्छा था आपका, नदीम को आपने सलमा आगा के तारीफ की थी, बताया था कि वो क्या और मुझे पराठे खिलाते रहो तो भाई खाना आते होते यार, आज भूख जरा कुछ कम है। वैसे भाभी पराठे बड़े लजीज पके, मगर अफसोस सिर्फ सोना ही खा सका हूँ। अब अगर इसके साथ एक प्याला राजपूतों वाली चाय का हो जाए तो जिंदगी कोई पुरसकून सी हो जाए। ये राजपूतों वाली चाय कौन सी होती है भाई? श्रीलंका की चाय सुनी है, कश्मीरी चाय सुनी है, चाइनीज चाय सुनी है। राजपूतों वाली चाय वो होती है जिसमें चीनी चम्मच की बजाय तलवार के साथ खोली जाए। कोई चाय से जाके ले आए, अरे मगर कौन जाए और कौन लेके आए। हसरत ही नहीं कि हमारे सामने भी कोई मेहंदी लगे हाथों के साथ चाय का प्याला रखे। और मुझे लगता है ये हसरत मेरे सीने में दम तोड़ तमाम जैसी अब्रू चेहरे पे साया करती हुई बन के दराज केसू चील जैसी उसकी आवाज। चील जैसी नहीं, चील जैसी बात है। गहरी आंखों कहती चील जैसी हो या चील जैसी, चलती है तो कमर का
जहाँ के दिन सोते हैं और रातें जागती हैं। तो यहाँ से टाइटल शुरू होता है, यहाँ से गारदार हुसन मेरे हाथ के ऊपर ही आ रहा होता है, मेरे जेवर पहने होते हैं। मैंने उसमें ना अल्लाह बख्शे क्या दिया है, पप्पी लहरी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे इंडिया के, वो जेवर पहनते थे तो जो सेम गेटअप मुझे कराया हुआ था उन्होंने। इतना अमीर आदमी है तो उस गेटअप में तो ऐसे ही मैं हूँ तो टाइटल चलता है पूरा। और वो मेरे पास पड़ी हैं 4-5 फिल्में मैं काविश वालों को दूंगा, जिसमें मल्लेदार जो मैंने खुद फिल्म बनाई थी जिसमें मैं रीमा के साथ हीरो हूँ, वो बाज़ार हुस्न और गोरी दियाँ झांझरां की मेरी बहुत आउट क्लास फिल्म है, वो मैं दूंगा इनको एक चलाएं। मेरे पास सीडियाँ इधर पड़ी हैं, अब वहाँ नहीं मिलती। तो बाज़ार हुस्न फिर हिट हुई पूरी, और उसमें आप यकीन करें कि मैं हैरान हूँ कि मुझे और समीना पीरज़ादा दोनों को नेशनल अवार्ड मिला। वो उनकी बीवी का पार्ट कर रही थी और नदीम साहब को नहीं मिला, सलमा आगा को नहीं मिला। फिर वो फिल्म इंडिया में कॉपी की गई पति पत्नी और तवाइफ के नाम पे। तो सलमा आगा ने मुझे कहा कि जाना है, मैंने आपका नाम दिया है। तो समीना पीरज़ादा ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं जाना इंडिया, रहने दो। मेरे वाला रोल अमजद खान साहब ने किया उस फिल्म में, बाज़ार हुस्न में। आप देखें सेम कपड़े सेम डायलॉग। तो ये एक आर्टिस्ट की मेराज होती है कि उसके ऊपर इस तरह का सिलसिला चल जाए। तो ये मेरी फिल्में और ड्रामे और ये अब क्या क्या मैं देखने से ताल्लुक़ रखता है। चलिए बहुत खुशी हुई आज आपसे हमारी मुलाकात हो गई। सवाल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास वक्त की कमी है जिसकी वजह से वक्त की कमी है। मैं घर जाके न रजाइयां नंगंदनियां ने ये ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ना किसी ने कि नंगंदनियां की होंदी ने, मुझे नहीं पता नंगनिया क्या होती है। मैं अभी जाकर शादिया से चाय पीनी है बड़ी अच्छी, और कल मैं सैंडविच इधर भूल गया था, वो शादिया खा गई। चलो कोई बात नहीं, मैं नया ले लूँगा। बड़ा बड़ा शुक्रिया जनाब काविश टीवी वाले रशीद साहब आपका, और कि आपने हमें टाइम दिया, शुक्रिया। माशाअल्लाह। कोई बात नहीं। खैर हो आपकी।